Great morning, everyone. Class 7 student, we were doing chapter number 12. Proceeding towards our next topic is the pendulum clock. Next topic we are going to complete is the pendulum clock. Indian astronomer Galileo Galilei discovered the swinging pendulum takes a fixed time to complete to and fro motion oscillation. This is the pendulum, simple pendulum. This is the simple pendulum, and this pendulum take a fixed time to complete to and fro oscillation. This to and fro oscillation. You have already learned about the periodic motion of a pendulum in class 6. A simple pendulum. This is the simple pendulum diagram of simple pendulum has small metallic ball called bob. This having the small metallic ball called bob suspended from right stand by a thread. When the bob of pendulum is at O, जब बोल ये जो बोल का पेंडुलम है O पोजीशन पे है, it is said to be in mean position. उस टाइम पे इसे क्या बोलती है? मीन पोजीशन. When the bob of pendulum is displaced slightly and release, it begin move to and fro. और जब इसको हम डिस्प्लेस करते हैं ये टू और फ्रो मूवमेंट शुरू कर देता है. One oscillation of a pendulum is completed when the bob moves from position O to A and then from A to B and then back to B to O. ये एक टू एंड फ्रो मोशन हो जाएगी. पहले ये बॉब ओ पोजीशन से ए तक जाएगा, फिर ए से ओ वापस आएगा, फिर बी तक जाएगा, बी से ओ वापस आएगा. दिस इज वन मोशन, वन टू एंड फ्रो मोशन. This is called one to and fro motion. The pendulum also complete one oscillation. This is called one oscillation when it bob move from one extreme position A to other extreme position B and come back to the position A. The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called time period. Very important. The time, how much time the pendulum take to complete one oscillation, this is called time period. Time period. This pendulum, this ball will move from O to A, then A to O, फिर O to B and then B to O. वापस आ जाएगा अपनी पोजीशन पे. So how much time it will take to complete this to and fro motion? This is called time period. This is called time period. The pendulum in a pendulum clock swings continuously under the influence of wound up spring and control the action of its hand. ये जो पेंडुलम क्लॉक होती है उसका जो बोल्ब होगा वो कंटिन्यूसली स्विंग करता रहेगा और स्विंग करने के साथ साथ इट कंट्रोल द एक्शन ऑफ इट्स हैंड. जो वॉच की जो निडल्स होंगी वो भी मूव करती रहेंगी. इन अ मैकेनिकल रिस्ट वॉच दैट इज़ फिगर 12.9b. दिस इज़ फिगर 12.9b. दिस इज़ रिस्ट वॉच. This is wall clock. This is top clock and this is stopwatch. Stop clock, stopwatch. These are the various devices used for measuring the time. These are the various devices used for measuring the time: wall clock, wristwatch, stop clock and stopwatch. In a mechanical wristwatch, मैकेनिकल रिस्ट वॉच में क्या हो रहा है? इन अ मैकेनिकल रिस्ट वॉच जो हम हाथ पे बांधते हैं, हाउएवर पेंडुलम इज़ नॉट यूज. पेंडुलम नहीं यूज़ करते. इट हैज़ अ बैलेंस व्हील विच सर्व द सेम पर्पज एज द पेंडुलम एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ इट्स हैंड. स्टॉप क्लॉक एंड स्टॉप वॉचेज आर यूज इन द लेबोरेटरीज. स्टॉप क्लॉक और स्टॉप वॉचेस को हम लैब में यूज़ करते हैं एंड स्पोर्ट्स में भी यूज़ करते हैं टू मेजर द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम एक्यूरेटली. दे कैन बी स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड एट एनी टाइम एट विल. हमारी मर्जी से हम किसी भी टाइम पे इसको स्टार्ट कर सकते हैं और स्टॉप कर सकते हैं. नेक्स्ट, दे आर एक्चुअली द इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ रिस्ट वॉचेज एंड मेजर अप टू 1/10 ऑफ अ सेकेंड. एक सेकेंड का 1/10 पार्ट भी ये मेजर कर देता है. Nowadays, most clock and watches have electric circuit with one or more cells. आजकल क्लॉक्स में क्या है? सेल का यूज़ किया जा रहा है एंड आर कॉल्ड डिजिटल और क्वार्ट्ज क्लॉक or watches. Digital clock and watches use vibration of a quartz crystal and measure time much more accurately compared to the earlier variety. जो पहले के टाइम पे वॉचेस आती थी उससे ज़्यादा जो आजकल डिजिटल क्लॉक्स और वॉचेस का यूज़ किया जाता है, दे कैन मेजर द टाइम वेरी एक्यूरेटली. नेक्स्ट इज़ द टॉपिक यूनिट ऑफ टाइम. Next is the topic unit of time. Since very inception of civilization, the gap between the two consecutive noons is taken as the unit of time called a day or a solar day. The gap between the two consecutive noons
नून्स दोपहर, एक दिन दोपहर हुई, नेक्स्ट दिन दोपहर तक का जो भी गैप है उसे सोलर डे बोला जाता था. सोलर डे इज डिवाइडेड इंटू 24 आवर्स इक्वल पार्ट एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड एन आवर. सोलर डे को 24 आवर्स में डिवाइड किया गया है इक्वल पार्ट में, और ईच पार्ट is called an hour. 1 hour is further divided into 60 equal divisions where each division is called a minute. उसके बाद एक आवर को भी 60 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया गया है वेयर ईच डिवीजन इज कॉल्ड अ मिनट, और एक डिवीजन को क्या बोला जाता है, मिनट बोला जाता है. ईच मिनट इज अगेन डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल डिवीजन. उसके बाद मिनट को भी 60 इक्वल डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है एंड ईच डिवीजन इज कॉल्ड अ सेकेंड. द ड्यूरेशन फ्रॉम वन सनसेट to sunrise is called night. The duration from one sunset to sunrise is called night. It has a part of solar day. The SI unit of time is second. यूनिट की टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड. और सेकेंड किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू 1/86,400 पार्ट ऑफ सोलर डे. 1 सोलर डे इज इक्वल टू 24 आवर. एक दिन में कितने घंटे हैं, 24 आवर. एक आवर में कितने मिनट्स हैं, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट. एक मिनट में कितने सेकंड है, 60 सेकंड. एक दिन में कितने सेकंड है, 24 आवर इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, दैट इज़ 86,400 सेकंड. और एक सेकंड कितना होता है बेटे, 1/86,400 ऑफ अ सोलर डे. एक पार्ट है इसका, एक हिस्सा है इसका 86,400 ऑफ सोलर डे का. डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट. टाइम की अलग अलग यूनिट को हम यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जांपल, एज ऑफ पर्सन इज कन्वेंशनली एक्सप्रेस्ड इन ईयर्स. किसी भी पर्सन की एज को हम ईयर में एक्सप्रेस करते हैं, डेज में, आवर्स में, मिनट में नहीं करते. सिमिलरली, टाइम टेकन टू रीच योर स्कूल फ्रॉम होम और टाइम टेकन टू रीच द मार्केट फ्रॉम योर होम इज एक्सप्रेस्ड इन आवर्स. आवर्स में, मिनट्स में एक्सप्रेस करते हैं, सेकंड्स या ईयर्स में एक्सप्रेस नहीं करते. तो हर एक चीज़ को मेज़र करने की एक यूनिट है. You already know that the smallest time interval that can be measured by commonly available watches is second. Smallest time interval कौन सा है that can be measured by the watches is second. However, nowadays special clock are available which can measure time interval as well as 1 millionth or even 1 billionth of a second. 1 second is equal to 10/6 microsecond. 1 second is equal to 10/9 nanosecond. Now, क्लॉक्स दैट मेज़र सच स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम. कुछ ऐसी क्लॉक्स भी हैं जो इतना छोटे टाइम को भी मेज़र करती हैं. आर यूज इन द साइंटिफिक रिसर्च. तो इनको कहाँ यूज़ किया जाता है, साइंटिफिक रिसर्च में. द टाइम ऑफ हिस्टोरिक इवेंट और ऑन द अदर हैंड आर स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ सेंचुरीज और मिलेनियम. हिस्टोरिकल इवेंट्स कौन सी थी, कौन सी सेंचुरीज़ में क्या हुआ था, कौन सी सदी में क्या हुआ था, तो उनको मेज़र करने की एक यूनिट है सेंचुरीज और मिलेनियम. द एज ऑफ स्टार्स इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन बिलियन ऑफ ईयर्स. 365 सोलर डेज को क्या बोला गया है, 1 ईयर में इंक्लूड किया गया है. 10 ईयर्स को 1 डिकेड, 10 डिकेड्स 1 सेंचुरी, 10 सेंचुरी 1 मिलेनियम. These are the units, very important to learn. With this, I'm going to end this topic. Further, we will continue in our next video.